हाँ जी, तो टॉमकैट के लिए सबसे पहली चीज आपके पास टॉमकैट डाउनलोडेड हो, और टॉमकैट डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया, और अभी भी हम लोगों ने बात करी थी टॉमकैट डाउनलोड करने से पहले कि टॉमकैट ही सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्वर है। 33% इंडस्ट्री टॉमकैट यूज कर रही है, और उसके बाद हम लोग जेवॉस यूज करेंगे, टॉमकैट के बाद सीखेंगे कि जेवॉस कैसे यूज करते हैं। तो जेवॉस 26% कम्युनिटी यूज कर रही है, रेस्ट बाकी सब सर्वर्स पे, राइट। तो डिफरेंस बिटवीन टॉमकैट एंड जेवॉस इज टॉमकैट इज ओनली द वेब सर्वर, it's a web server, where JBoss is your application server. So the difference between web server and application server is web server is only used to run your web applications. So web applications का मतलब है कि you can deploy the servlet, you can deploy JSP, you can deploy struts. So it means आप JSP, servlet और struts जैसी application बना सकते हो. But if you want to develop EJB applications, कल हमने बात करी थी ना enterprise Java Beans applications की. If you want to deploy your EJB applications, so you need to use JBoss application server, right? The answer is application server is for this. नॉर्मल बीन्स तो आ सकते हैं, मतलब नॉर्मल बीन्स आ सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बीन्स आ सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब बिल्कुल। So web servers contain the thing that is called web container. So your web server contain the web container. So web container is nothing; it's a runtime environment to run your application, right? And the web container is only run your web components. यानी कि web container किसे चला सकता है? Web components को. So what is a web component? So web component is servlet, JSP, struts, Spring, MVC based applications. इसका मतलब ये सारी एप्लीकेशन आप किस में चला सकते हो? वेब सर्वर में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वेब सर्वर, तो आप बोलोगे टॉमकैट इज द एग्जांपल ऑफ वेब सर्वर, जेटी इज अ एग्जांपल ऑफ वेब सर्वर, राइट। तो ये दोनों क्या आपके वेब सर्वर्स हैं। अब एक दूसरी चीज आती है एप्लीकेशन सर्वर। सो एप्लीकेशन सर्वर क्या कहता है? एप्लीकेशन सर्वर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज द वेब कंटेनर प्लस it has the EJB container, so it means it has two containers. So आपको क्या समझ आया? एप्लीकेशन सर्वर is much bigger than your web server. That's why web server is lightweight. So that's why Tomcat is lightweight. तभी तो आपको मिल रहा है 8 से 10 MB के बीच का, right? So your application server has another thing that is EJB container. So it means it can run EJB things. So it means EJB things can deploy on EJB container, and which has the EJB container, it is your application server. So application server is a combination of two things, EJB container plus web container. So because it has the web container, so it has the same thing, it can deploy your servlet, JSP, struts, Spring, MVC things, right? So example of your application server is JBoss, which is an open source. So JBoss is an open source, Tomcat is again an open source thing, JT is an open source, right? Right. But it's a bigger thing. It's a bigger thing because it has another thing that is your EJB container. और हमने बात करी थी ना, why we use EJB? Because EJB is used to deploy your business logic on the server. तो अगर आपको business logic किसी separate server पे रखना है and you want to call your business logic from different user interface. Let's take an example. कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में कुछ ऐसा है कि customer demand, I need a Android version of this. Customer demanding, I need a web version of this. And customer demanding, I want a Swing version of this. समझ रहे बात? तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं? Same thing, but I want a 3 versions. So Android is a user interface. Swing is a user interface. The web is a user interface. The business logic is common among all these applications. So I will deploy that logic on server, and that server has EJB container. So I will create an EJB which contains the business logic, and that business logic is consumed by Android, that consumed by Swing, and that consumed by your Swing web plus Android. तीनों से कंज्यूम करने वाली है, और लॉजिक आपने सिर्फ वन टाइम बिल्ड करके रखा. So now your logic is on server machine, and that server machine has to have application server. यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए? Application server होना चाहिए. It is like a web service. It is not like a web service. It is like a service.
It is like a service where web service or EJB difference in it is the web service can talk to any language. So language interoperability feature is in your web service. So if I create a web service, इसका मतलब EJB के ऊपर मैं क्या बना दूंगा? Web service बना दूंगा. The difference is EJB can only talk to the Java things, where web service can talk to another language. any other language. बात समझ आ रही है? तो मैं अगर इसी को EJB के ट्रांसफॉर्म में बोलता हूँ, मैं बोलता कि अगर आप EJB यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ और जावा के लिए जावा एप्लीकेशन से बात कर सकते हो. इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया कि नाउ योर लॉजिक बिजनेस logic is placed on a one machine that we take it as a server machine, and this server machine has to have application. इस machine पे क्या होना चाहिए? Application server. Now I can build a swing based application, I can even build a Android based application, or even I can build a Java web based application. Because everything is Java based, so I can communicate directly to my business logic. So business logic मैंने सिर्फ कितनी बार लिखा? एक बार. हाँ जी, सबको बात समझ आती? बट अगर इसी को मैं बोलता कि I want to create a web service, तो मैं क्या करता? It is like I have a server machine which is having a business logic. तो उसके अंदर क्या होता? एक business logic होता. On top of this business logic, there is a one layer that is taken as a web service. हाँ जी, बात समझ आ रही है? And this business logic is I can take it as a EJB, right? And again, everything is running on. They all will communicate with web service. But this is running on your application server. ये कहाँ चल रहा होता? Application server पे. And now I can have different kind of clients. This client could be a PHP client, right? This could be Apple iOS client. This could be .NET client, or this could be Java client. सर्वर की Because- पोर्टेबिलिटी नहीं, मेजर चीज क्या हो यहाँ पर? Because your EJB contain your business site, and this EJB, because it's a Java thing, right? The web service क्या करता है? It convert your EJB object things into the XML or JSON form, and this XML JSON is understandable by, ठीक है जी? और इसके लिए जो दो टर्मोलॉजीज होती हैं कि अगर मेरे को ऐसा कम्युनिकेशन करना है तो बीच में जो मैं लेयर डालूंगा that would be a SOAP based layer और REST based layer, right? So इसका मतलब वेब सर्विसेज दो कैटेगरी से बनाई जा सकती हैं, SOAP वेब सर्विसेज और REST वेब सर्विसेज. इसका मतलब जितनी भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं, एवरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड दिस थिंग. What is the meaning of SOAP? SOAP आपके पास क्या है कि अब आप SOAP देयर आर नहीं सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. ठीक है, ये क्या बोलता है कि आप इंटरनेट पे HTTP के साथ क्या ट्रांसफर करा सकते हो? XML ट्रांसफर करा सकते हैं. ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड्स है मार्केट में. हम इसके भी डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारा एजेंडा है एंड्रॉइड क्या कहते हैं टॉमकैट पे ध्यान देना भी. ठीक है, SOAP भी वेब सर्विस ही है. हाँ ये वेब तो सर्विस. ये तो बिजनेस लॉजिक के अबव जो आपने ऊपर लिखा है वेब सर्विस XML JSON, तो जो XML JSON में फाइल कन्वर्ट हो रही है EJB वाली XML, और तो इसी की हेल्प से हो रही है इसी के SOAP थ्रू. की help से. राइट. बट जो प्रोटोकॉल्स हैं ये तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट मैं ऐसा बोलूं कि ये जो XML JSON बन रहा है आइदर यहाँ SOAP लिख पड़ा होगा हाँ, SOAP या REST पड़ा होगा. WIDL. ठीक है, और क्लाइंट के पास भी क्या होगा? SOAP और REST होगा. ठीक है, तो वो इसके थ्रू इस लेयर पे बात करेगा और फिर वापस रिजल्ट भेजेगा. तो हमने ये देखा कि अगर मेरे को एप्लीकेशन बनानी है तो मेरे पास तीन वेराइटी है. आइदर आई कॉन्सेंट्रेट ऑन वेब एप्लीकेशंस, so I need a Tomcat or Jetty kind of servers. Either I am concentrating on services that is contained on in the business layer, so I can go for application server. But the thing is, it is only for Java based clients. It is not for non-Java clients.
सर जो जे बॉस मतलब यूज करेगा सिर्फ जावा वाले यूज करते नहीं, JBoss सर्वर है यार। हैं JBoss पे तो EJB भी डिप्लॉय कर सकता है और वेब सर्विस बना कर आ सकता है, ठीक है। GSP भी और JSP, Strut, Spring सब लगा कुछ सकता भी है। लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेब सर्वर की, तो वेब सर्वर में EJB नहीं चलता है, जब वेब सर्वर राइट। दैट्स व्हाई वी गो फॉर एप्लीकेशन। इसीलिए वहाँ वेब सर्विसेज वेब सर्विसेज बिल्ड कर सकते हैं वेब सर्वर पे, अगर वो EJB बेस्ड ना हो वेब सर्विस। अगर उसमें सिंपल जावा हो तो हम बना सकते हैं। वेब है तो दोनों ही वेब सर्वर ही तो है अभी, अरे जैसे भाई। आपने ग्राफ में दिखाया था JBoss और ये टॉप वेब सर्वर इज ओनली फॉर वेबसाइट क्रिएशन। हमारे लिए कहता है मेरे को वेबसाइट बनानी है, जैसे तो वेबसाइट बनानी है ना मेरे को उसमें, तो वेबसाइट बनाने के लिए किसी यूज़ करूँ, मैं यूज़ करूँ टॉमकेट जैसे, राइट। लेकिन अगर कोई मेरे से बोलता है कि नहीं वेबसाइट नहीं, मुझे तो एक सर्विस भी चाहिए जिसमें एक लॉजिक बना दो और उसके अलग अलग कंज्यूमर होंगे। एंड्रॉयड हो सकता है उसका कंज्यूमर मेरे पास, स्विंग हो सकता है उसका कंज्यूमर, का स्ट्रट्स हो सकता है। तो मैं एक बार लॉजिक बिल्ड करूँगा ना, उस लॉजिक को कहाँ डिप्लॉय कर दूंगा, एक सर्वर पे। अब वो कैपेबिलिटी वेब सर्वर के पास नहीं है, वो कैपेबिलिटी किसके पास है, एप्लीकेशन सर्वर के पास। क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर के पास कौन सी टर्मोलॉजी है, EJB एक ऐसी टर्मोलॉजी है जिससे आप लॉजिक को सर्वर पे होस्ट करके आ सकते हैं। समझ रही बात, क्लियर है? सर EJB लेस वेब सर्विसेज क्या कौन से होंगे? क्या चीज़? जो आपने कहा ना कि अगर EJB बेस्ड हमारे वेब सर्विसेज होंगे तो वो वेब सर्वर पे वो नहीं, उसको वेब सर्वर पे नहीं रखेंगे। देख, जब वेब सर्विस बनाते हैं, वेब सर्विस से एक जनरल फंडा है। अब मैं लॉजिक जब बिल्ड करता हूँ अपना, तो लॉजिक के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हमें ऐड ऑन करनी होती है। जैसे कि कोई मेरे से बोलता है कि लॉजिक को कंज्यूम करने वाले हैं 1000 यूज़र, उसको मतलब मल्टी थ्रेडिंग लगानी पड़ेगी लॉजिक के साथ ही। तो अगर मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ तो मल्टी थ्रेडिंग का लॉजिक भी किसे लगाना है मुझे। फिर कोई बोलता है कि मेरे को ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट चाहिए, JDBC से पढ़ी थी हमने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, कि अगर या तो कमिट होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, रोल बैक होनी चाहिए। तो अब ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को हैंडल करना मेरा ही काम है क्योंकि मैं जावा में कोड लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं EJB की बात करूँ तो EJB में कहते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑलरेडी रेडीमेड, तो मुझे कोडिंग पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मल्टी थ्रेडिंग रेडीमेड है, सिक्योरिटी रेडीमेड है, नेटवर्किंग रेडीमेड है, तो रेजिस्टेंस डेटा को स्टोर करना इज रेडीमेड। समझ रहे बात? तो अगर मुझे सारे फीचर चाहिए तो मैं EJB की तरफ चल जाऊँगा। अगर ये सब फीचर नहीं चाहिए तो मैं सिंपल जावा वाली चीज़ यूज़ करूँगा। उसको मैं सिंपल जावा के ऊपर भी मैं क्या बना सकता हूँ, वेब सर्विस बना सकता हूँ और EJB भी बना सकता हूँ। लेकिन आपसे बोलते हैं EJB भी वेब सर्विस बनाओ, सो इट इज ओनली पॉसिबल ऑन एप्लीकेशन सर्विस। बट इफ यू वांट सिंपल जावा एंड यू वांट टू क्रिएट अ वेब सर्विस, so either you go for a Tomcat, either you go for a application server. This means either you deploy on a web server, either you can deploy on a application server. It's matter of your choice. ठीक है जी, समझ आया? कि क्या डिफरेंस है? मतलब ये हम आगे पढ़ने वाले हैं ऐसे कि हम पहले एप्लीकेशंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर हम बिजनेस साइड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब EJB ले आएंगे। इसको हम वेब कंटेनर और EJB कंटेनर को दोनों को मिक्स कर देंगे, यानी कि हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके पीछे क्या बनाएंगे, लॉजिक। ठीक है, तो इसका मतलब अभी शुरुआत हम कैसे करने वाले हैं लॉजिक्स की, हम लॉजिक्स उसी के अंदर रखेंगे, वेबसाइट के अंदर ही। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इसकी वेबसाइट में लॉजिक दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता। लेकिन दोनों कहते हैं कि हम शेयर करना चाहते हैं लॉजिक, तो हम उसको कहाँ डाल दें, एप्लीकेशन सर्वर में। और मान लो दोनों कहते हैं जावा क्लाइंट है, तो EJB चॉइस है। लेकिन एक तीसरा बंदा आता है, वो कहता है नहीं मैं जावा नहीं तो PHP पे हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा लॉजिक यूज करना चाहता हूँ, तो फिर क्या पिक्चर में जाएगा, वेब सर्विस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये इंट्रो क्वेश्चन आता है भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेब सर्विस एंड अ एप्लीकेशन। मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम डिफरेंट यूजर एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन सर्वर पे, बट यहाँ वेब सर्वर पे नहीं कर सकते। देखो भाई, JBoss और आपका ग्लासफिश और वेबलॉजिक और वेबस्फीयर, ठीक है जी। और कौन सा रहेगा, JBoss, ग्लासफिश, वेबलॉजिक, वेबस्फीयर, एक और है, उसका
उसका नाम है Oracle ऐप सर्वर। इसे भी आप यूज कर सकते हो। नहीं क्या लगे, ग्लास फिश बनाया है सन माइक्रो सिस्टम ने अपने टाइम में, क्योंकि नेट बीन्स के साथ आता था। Oracle जे डेवलपर आईडी था, और उसके साथ जो आता था वो था Oracle ऐप सर्वर। ठीक है जी। एक इंडिया का भी है खुद का, उसका नाम है पिरामती सर्वर। हाँ, पिरामती सर्वर है, ठीक है, वो इंडियन सर्वर है। ठीक है जी, ये क्लियर हो आप सबको? अभी हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? हम लोग ध्यान दे रहे हैं टॉमकैट वाले। तो हमने टॉमकैट को एक्सट्रैक्ट किया था। टॉमकैट के अंदर आपने देखा बिन है, और बिन के अंदर कौन सा है हमारे पास? स्टार्ट अप डॉट बैट, और आप अगर देखो तो शट डाउन डॉट बैट। तो स्टार्टअप डॉट बैट क्या करेगा? उसको स्टार्ट कर देगा सर्वर को, शट डाउन से शट डाउन। बिल्कुल। अब आपको ये बात समझनी है कि जब स्टार्टअप डॉट बैट को अगर आप खोलोगे तो इसके अंदर देखते हैं कोड क्या लिखा है। तो एडिट पे जाते हैं इसके, क्योंकि बैच फाइल है। तो आप ये देखो, यहाँ रैम लिखा हो ना, रैम का मतलब होता है कमेंट्स। ठीक है, ये कमेंट्स है इसके। तो इसे नीचे जाना शुरू करें तो यहाँ देख लो सबसे पहला बात क्या है? कैटलीना होम। ठीक है, ये जो कैटलीना होम है ये हमें सेट करना होता है। कैटलीना होम होता है टॉमकैट का लोकेशन, कि टॉमकैट की लोकेशन क्या। अगर आप देखो कैटलीना होम पे जाकर ही क्या लगा रहा है, पढ़ो जरा। इसका मतलब ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पाथ लिख दूंगा ई ड्राइव में टॉमकैट है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टॉमकैट कहाँ से चलना चाहिए? ई ड्राइव। सी ड्राइव लिख दूंगा तो क्या होगा? सी ड्राइव। मैं ऐसा करता ही नहीं। और अगर मैं लिनक्स एनवायरनमेंट में तो सीडी है ही नहीं। तो क्या कहता है आप जाकर अपना पाथ सेट करो कैटलीना होम। कैटलीना होम का मतलब क्या होगा? टॉमकैट तक का पाथ। और टॉमकैट के बिन के अंदर जाके मैं किस फाइल को चला दूंगा? कैटलीना डॉट बैट। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब अगर मैंने कैटलीना होम पाथ सेट नहीं किया तो चला ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जाकर हमेशा कहाँ ढूंढेगा? बिन के अंदर। और बिन के आगे वो क्या नहीं दे रहा? पाथ ही नहीं दे रहा। और पाथ वो कहाँ से हमेशा उठाएगा? इस वेरिएबल में से। क्योंकि ऐसा नहीं होगा जैसे हम प्रॉपर्टी फाइल में जाके सेट करते थे की, तो ये की है और वैल्यू आपको जाकर इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करके आ रही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ जाके देखें कि भाई कैटलीना डॉट बैट के अंदर ऐसा क्या लिखा है, तो आप यहाँ इसका मतलब स्टार्टअप डॉट बैट कुछ नहीं करता, वो जाकर किसे कॉल लगाया जाता है? इसे एडिट कर देखो जरा, कैटलीना डॉट बैट में क्या लिखा है। इसे स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, ये कैटलीना होम को उठाता है, इसके नीचे स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। देख रहे हो किसे उठाता है? जावा होम को उठाता है। और इसी के अगर हम नीचे और स्क्रॉल करना शुरू करें तो कहीं पर एक और पार्ट आएगा आपके पास, जेआरई होम का। आगे तो कमेंट्स में सब इसका मतलब दो पाथ पे डिपेंडेंट है, जावा होम पे और एक और पाथ होता है इसका जेआरई होम। तो इसे सर्च कर लेते हैं। सर डॉट बैट फाइल तो इसमें है, डॉट एसएच डॉट बैट जेआरई होम है ना, और एक कौन सा पाथ बोलता है? जावा होम। इसका मतलब ये तीन पाथ हमें सेट करने हैं। कौन कौन से हुए भाई? कैटलीना होम और जावा होम, तीन पाथ सेट करने हैं, तब जाके टॉमकैट चलेगा। ठीक है जी, तो कैसे सेट करोगे इस पाथ को? आप लोग क्या जाओगे माई कंप्यूटर पे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये हम लोग पहले कर चुके हैं एक बार सिस्टम में, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरमेंट वेरिएबल। और अगर आप देखो तो एनवायरमेंट वेरिएबल मैंने सिस्टम वेरिएबल के अंदर कौन सा पाथ सेट किया है? कैटलीना होम। इसे एडिट करके देखते हैं। तो आप यहाँ जाके लिखोगे कैटलीना होम, मेरे पास ऑलरेडी सेट है, आप इसे न्यू करके ऐड करोगे कैटलीना अंडरस्कोर होम। और आप देख रहे हो इसके अंदर पाथ कहाँ तक का है? टॉमकैट तक का। टॉमकैट के बिन से पहले ध्यान रखना, यानी कहाँ तक का पाथ देना है? यहाँ तक का पाथ आपको कॉपी करना है और यहाँ जाकर इस पाथ को पेस्ट कर देना है, राइट? बिल्कुल, it's a zip version, it's not a executable, right? So there are two versions. One is the executable. Executable मतलब है क्लिक किया और अपने आप सब कुछ करा है। उससे नुकसान क्या है? अगर आप ये वाला तरीका नहीं सीखते हो तो अगर आप लिनक्स एनवायरनमेंट पे जाओगे तो वहाँ थोड़ी एक्जीक्यूटेबल चलती है, तो वहाँ आपको यही काम करना है। सो इट इज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वे अगर हम ये वाला तरीका सीखते हैं तो।
क्योंकि वहां पर भी यही कैटलिना होम सेट होगा। तो आप देख रहे थे एक बैट फाइल थी, एक SH थी। SH इज फॉर शेल स्क्रिप्ट, दैट इज फॉर लिनक्स एनवायरनमेंट, बैट इज फॉर विंडोज एनवायरनमेंट। ऐसे टर्मिनल वगैरह पे जाके ऐसे सेट करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा, राइट? तो सर तीनों वेरिएबल्स का मैं पाथ सेट कर तीनों का तो मैंने एक का कर दिया यहाँ पर सेट, क्लियर है? JRE और दूसरा क्या हुआ हमारे पास, जावा अंडरस्कोर होम। तो जावा अंडरस्कोर होम का पाथ कहाँ तक है? JD के तक का। ध्यान रखना, जहाँ वर्ड आ जाए ना JD होम, जब भी वर्ड आए होम, तो आपको समझना है बिन से पहले वाले पाथ। तो कैटलिना होम कहाँ तक का पाथ था? टॉमकैट के बिन से पहले तक का पाथ, जावा होम बिन से पहले तक का पाथ। तो हमने जावा होम सेट कर दिया। अब एक और चीज सेट करोगे ना, JRE होम। JRE होम कहाँ तक का पाथ है बताओ? JRE तक का। JRE के बिन के अंदर नहीं जाना है, बस JRE तक का पाथ। ये वन टाइम एक्टिविटी है, बस एक बार करना है, ऐसा बाबा नहीं करना है, ठीक है? तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सेट है। आप ओके करोगे इस केस में सेट करके। सो ये 3 पाथ परफेक्ट सेट है आपके पास। अब अगर ये तीनों पाथ सेट है तो अब जाकर हमें क्या करना है, बिन पे जाना है। बिन हमारे पास ओपन हुआ, एंड देन in this area which is a blank area here, right, this area, I just press shift key, hold the shift key and then right click and then open the command window, open command window here, right? So ये आपको कहाँ पहुँचा देगा? सीधा bin पे पहुँचा देगा, right? And the good practices always do shutdown.bat. So it means if something is running, so first it will shut down it. So देख रहे हो आप यहाँ पर इस शट डाउन किया और उसने बोला कनेक्शन रिफ्यूज, मीन्स नथिंग इज रनिंग, राइट? अब हम यहाँ पर जाके क्या करते हैं, यहाँ जाके लिखते हैं अब startup.bat। so startup.bat का मतलब क्या है भाई? सर्वर को स्टार्ट कर दो। अब देखो, इसने जाकर टॉमकैट को स्टार्ट करना शुरू किया और यहाँ एक मैसेज आएगा आपके पास कि सर्वर स्टार्टअप। तो आपके पास एक मैसेज आ रहा है, सर्वर स्टार्टअप in 34414 मिलीसेकंड्स, राइट? दिस मींस सर्वर इज स्टार्ट हो चुका है। आपको चेक करना है कि माई सर्वर इज रनिंग और नॉट। तो कैसे चेक करोगे? गो टू दिस और आप यहाँ लिखोगे HTTP लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट कॉलन 8080, राइट? सो 8080 इज योर पोर्ट नंबर जिस पे टॉमकैट चलता है, ठीक है? हाँ जी, फिक्स्ड है, हम चेंज भी कर सकते हैं। एंटर मारते हैं, ये क्या दिखा रहा है? मिसस्पेल हो गया थोड़ा सा, मेरे से डॉट लग गया, डॉट लग गया है, यहाँ से हटा देते हैं। लोकल होस्ट 8080, ये स्क्रीन आपके पास अपीयर होनी चाहिए। अगर आपके पास अपीयर हो गया तो मतलब कि आपका टॉमकैट शट हो गया है। सर अगर हम मेरे इस पोर्ट ऑलरेडी चल रहा है, वो कर दें, ठीक है? अगर हम वेरिएबल पाथ सेट ना करें और फिर हम यहाँ पे आप ओपन कमांड विंडो खोलें, चलेगा ना? तो चलेंगे। जैसे जावा की टॉमकैट इज डिपेंड ऑन योर जावा। अब जैसे इसने टॉमकैट 7.0 बिन का बात खोल लिया, यहाँ स्टार्टअप में करूँगा तो चलेगा नहीं टाइम? आपको पाथ सेट करने चाहिए, सिस्टम वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल में पाथ सेट हो गया। फिर आप कमांड के अंदर जाके लिखो सेट जावा अंडरस्कोर इक्वल टू। सर जब टॉमकैट इंस्टॉल हो जाएगा तो उसमें Set ऑटोमेटिक path। आएगा टॉमकैट होम भी कर दिया। अभी तो नहीं आएगा ना ऐसे, समझे? मतलब अभी आ रहा है इंस्टॉल, अब होम में जाके करे थे ना, हाँ, तो उसमें आ रहा था ना टॉमकैट होम। मतलब इंस्टॉल नहीं करना है टॉमकैट पे। टॉमकैट इज अ जिप फाइल, यू जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट इट। मैंने उसे एक्सट्रैक्ट किया और उसका पाथ उठाया और उस पाथ को ऑर्गेनाइज मार दिया। जब भी हम क्लिप्स खोलेंगे उससे पहले शट डाउन कर देते जब सिस्टम तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। जब भी क्लिप्स खोलेंगे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लिप्स के साथ अभी बात ही नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, बिना क्लिप्स के बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने सर्वर स्टैंडअलोन स्टार्ट किया। इसको जब भी मशीन ऑन करते हैं स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, सर फिर से मैं JDK का बात को देना पड़ेगा। JDK का पाथ नहीं दिया हमने, जावा होम का पाथ दिया। उसको ये बताया हमने कि JDK कहाँ पड़ा है। जो हमने पहले बिन तक का पाथ दे रखा था वो बना रखा था, JDK कमांड्स कहाँ पड़ी, ठीक है? ये क्लियर है आप सबको? तो टॉमकैट यहाँ आपके कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब बात आती है, सिस्टम बोला कि मेरे पास 8080 पोर्ट ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो मेरे पास 8080 पोर्ट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो माइट मोस्ट ऑफ द टाइम Oracle की होती है ज़्यादा। अगर आपकी मशीन पे Oracle है तो Oracle भी 8080 पोर्ट यूज़ करता है, ठीक है? सो यू कैन चेंज द पोर्ट, राइट? तो ये चेंज करते हैं। चेंज करने के आपको क्या करना है, टॉमकैट पे जाना है, इसे बैक करते हैं, एक फोल्डर मिलेगा कॉन्फ नाम से।
कॉन्फ़िग में गए, कॉन्फ़िग में देख रहे हो क्या फाइल मिली है, server.xml। आपको server.xml पे राइट क्लिक करना है, ओपन विद करना है, और ओपन विद में मान लो किसी नोटपैड या टेक्स्ट पैड में राइट, इसमें जाकर मेरे को सर्च करना है। तो मैं यहाँ जाकर सर्च करता हूँ इसे। सर्वर पोर्ट आ रहा है तो यहाँ हम जाते हैं, यहाँ पर एक कनेक्टर आ रहा होगा, देखो ये देख रहे हो, कनेक्टर पोर्ट 8080 आ रहा है। इस 8080 को आपको चेंज कर देना है। तो लेट्स से अगर मैंने जैसे इसका अगर मैंने पोर्ट दे दिया 7676, सो नाउ 8080 की जगह क्या हो जाएगा, 7676 राइट। और सर्वर को पहले मैं शट डाउन कर देता हूँ। शट डाउन करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+C, सर्वर बंद हो गया मेरा राइट। अब वाकई में बंद हुआ है, इसे चेक करने के लिए इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो जरा, द वेब पेज इज नॉट अवेलेबल। अब वापस यहाँ जाते हैं, यहाँ देखो 7676 सेट हो चुका है, Ctrl+S करते हैं राइट। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना जरा, एक कनेक्टर पोर्ट जो आ रहा है मेरे पास, ये देखो कमेंटेड नहीं है, और एक देख रहे हो कमेंटेड है। ये देखो, इससे पहले कमेंट शुरू है, इसके बाद क्या है, कमेंट बंद है। तो अगर आप इसमें कर दोगे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये अनकमेंटेड है, अनकमेंटेड वाले में करना, ध्यान रखना इसके ऊपर कोई कमेंट ओपन नहीं है राइट। तो 7676 पे हो गया। और वापस जाते हैं अपनी मशीन पे, और फिर से क्या करते हैं, हम startup.bat चला जाते हैं। सर्वर दोबारा से स्टार्ट होना शुरू है। सर ओनली स्टार्टअप, और फिर शट डाउन करने के लिए shutdown.bat Ctrl+C या Ctrl+C जब चल रहा है ऑलरेडी तो राइट। अब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखो फिर से लोकल होस्ट 8080 कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसका पोर्ट क्या कर दिया था, 7676। एंटर मारते हैं, हो गया ना पोर्ट चेंज। पोर्ट्स की लिस्ट की हमको उसके लिए आपको अपनी मशीन के कमांड्स पता होने चाहिए, जैसे कि विंडोज पे आपकी कमांड्स होती हैं। तो देखो भाई, हमने टॉमकैट तक कर दिया, हमें पोर्ट भी चेंज करनी आ गई टॉमकैट की, है ना। अब हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाकर देखते हैं। तो डी ड्राइव में पहुँच जाते हैं, जावा 225 वाले बैच में जाकर हम लोग अपना एक फोल्डर बिल्ड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके फोल्डर बिल्ड कर देते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है जी। तो हमने माय फर्स्ट वेबसाइट नाम से फोल्डर बिल्ड कर दिया, ठीक है। और यहाँ जाकर राइट क्लिक करते हैं, इसमें न्यू करके एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। और मैंने यहाँ जाके लिख दिया index.html, इसकी एक्सटेंशन बदल दिया मैंने, index.html कर दिया, है ना। इस पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कर लेते हैं, और नोटपैड में खोल लेते हैं मीनवाइल राइट। वैसे नोटपैड में खोला, और नोटपैड में खोल के यहाँ HTML क्लोज कर लेते हैं राइट। और इसकी बॉडी बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जाकर H1 में जाकर हम इतना लिख देते हैं, हेलो यूजर। तो ये हमने पहला पेज बिल्ड कर लिया, इसका सेव कर लेते हैं ऐसे राइट। तो हमारा एक पेज बिल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसे इंटरनेट पे होस्ट किया जाए, है ना। तो हमारे पास इंटरनेट के लिए क्या है, टॉमकैट, ताकि टॉमकैट सर्वर पे होस्ट करें। तो ये आपको क्या करना है, आपको जाकर इस माय फर्स्ट वेबसाइट को कॉपी करना है। तो राइट क्लिक करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके कहाँ पहुँचना है टॉमकैट में। और कहाँ पेस्ट करना है, वेब एप्स में। ये ध्यान रखना, जब भी आप वेबसाइट बनाओगे चलाना है उसे, तो कहाँ जाएगी वो, वेब एप्स में। तो वेब एप्स पे जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं। दिस इज पेस्टेड राइट। हाँ जी, समझ आई बात। रूट डायरेक्टरी जहाँ पर वो पेजेस बिल्कुल, वेब एप्स पे जाकर आपको इसे पेस्ट करना है राइट। तो मैंने यहाँ पर जाकर इसे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद क्या करना है, सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम इसे चला पाए। तो चला, और अभी क्या करना है, वापस जाना है, लोकल होस्ट 7676 था, यहाँ जाके क्या करें, स्लैश नहीं, क्या देना पहले, प्रोजेक्ट का नाम। तो वेबसाइट का नाम क्या है, माय फर्स्ट वेबसाइट,
तो गए हम हमारे फर्स्ट वेबसाइट पे स्लैश इंडेक्स को डिफॉल्ट उठा लेगा। index dot html इंडेक्स को डिफॉल्ट उठा लेगा। ठीक है तो index dot html हम लोगों ने लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ ये डिस्प्ले होना शुरू हुआ ठीक है तो ये ऐसा नहीं होगा जैसे वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो आप बिल्कुल तो ये रियल टाइम में क्या होगा लोकल होस्ट 767 और माय फर्स्ट वेबसाइट का नाम हो जाएगा amit.com हाँ, इसका वो पाथ तो समझ रहे हो बात? डोमेन नेम दे सकते हैं। अभी नहीं दे सकते डोमेन नेटवर्क स्टैब्लिश करके करना पड़ेगा तो मैं नहीं, बिना उसके भी करते हैं। नेटवर्क वही ना नेटवर्क ट्रिक्स है ना कि जावा ट्रिक्स की बात कर रहे हैं सर ऐसे जो Ready to नोटपैड में HTML कोड लिख के और उसको रन कराते हैं थोड़ी कोई फर्क नहीं यार अब जाके तो मेरी मशीन का आईपी एड्रेस अपनी मशीन पे टाइप करके एक्सेस कर सकता है तो अगर मैंने इस मशीन को जाके कनेक्ट कर दिया वाईफाई से या Wi-Fi नेटवर्क से। से कनेक्ट कर दिया तो मुझे क्या करना है तो जाके मेरी मशीन का आईपी लोकल होस्ट के लिखना है सिर्फ आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस ऑफ माय मशीन तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जैसे गूगल को एक्सेस कर रहा है बिल्कुल ऐसे एक्सेस होने लगे मेरी वेबसाइट तो वाईफाई के थ्रू डायरेक्ट भेज कुछ जरूरत नहीं आने जो मेरा मोबाइल है वो इस सर्वर को कॉल कर रहा है जो मेरा मोबाइल है आईपी एड्रेस उसको कॉल करवा रहा है अगर मोबाइल से भी एक्सेस करो मोबाइल के ब्राउजर से सर मोबाइल में जाके इसका आईपी एड्रेस अगर सिस्टम पर डालेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ठीक है वो आप HTML तो नहीं कर सकते थे क्लियर है बात आप सबको इसको मतलब जो हम यूजर यूआई पढ़ा ना हम लोगों ने इसमें सीखा हम लोगों ने HTML जावास्क्रिप्ट ये सब सर, इसको वो online आप भी प्रोजेक्ट रखना को डाल सकते हैं सर्वर हमेशा ऑन रहता है ये समझो ये जो आज हम लोगों ने चीज सीखी है रियल टाइम में जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वहां पर ऐसी एक सर्वर मशीन होगी जहाँ सिर्फ टॉम कैट होगा वहाँ इक्लिप्स नहीं होगा और आप अपना सारा प्रोजेक्ट इक्लिप्स में बनाओगे और उसको उठाकर कहाँ डालोगे सर्वर सर्वर पे जहाँ हमने वेबएप्स पे डाला है और आप बोलोगे कस्टमर की एप्लीकेशन अब हो गई है और कस्टमर क्या एक्सेस कर रहा होगा इस मशीन को वो हमें सर नेट से कनेक्ट होगा और सर्वर ऑन रहेगा ठीक है जी क्लैरिटी हुई आप लोगों को कुछ ऐसा भी होता है ना कि हम कस्टमर को हम बीच में अपनी अपनी कुछ